Hello students, we have completed chapter number 7 of our geography. This chapter is our country India. हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. Now we'll do exercise of this chapter. So first question is, answer the following questions briefly. इन क्वेश्चंस का ब्रीफली आंसर देना है. नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स के नेम्स बताने हैं. एज वी नो देर आर मैनी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया लाइक माउंटेन्स, plateaus, islands, plains, okay, coasts जो सी के नियर होती हैं. So these are major physical divisions of India: mountains, plateaus, plains, coasts and islands. In map you can see major physical divisions. In the map, here you can see this is the map of India. In this you can see here these are mountains and these are Himalaya mountains. Himalaya mountains हैं. Okay, here are Aravalli mountains. Here you can see Vindhya mountain. So mountains, different types of mountains, and then you can see here plains. Here these are Ganga Yamuna plains, or we can say नॉर्दर्न प्लेन्स. ये नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पे. सो माउंटेन्स, प्लेन्स एंड हियर यू कैन सी दिस इज कोस्ट्स. दिस इज कोस्टल एरिया. दिस इज द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. दिस कोस्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट. दिस इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट कही जाती है. मालाबार कोस्ट एंड दिस कोस्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. दैट इज द कोस्ट ऑन द साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट एंड दिस इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट. एंड हियर यू कैन आल्सो सी these are Andaman and Nicobar Islands. Here Lakshadweep Islands, these are located in Arabian Sea. Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar are located in Bay of Bengal. We have discussed, and here you can see this is a plateau. This triangular structure is Deccan Plateau. We can say this is Deccan Plateau. So main physical divisions of India, physical features of India are mountains, plateaus, coastal areas, here islands and plains. So these are major physical features of India. Now we will move to next question. Next question is, India shares its land boundaries to 7 countries. Name them. उनके नेम्स बताने हैं जिनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है. यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लैंड बाउंड्रीज पूछी हैं. ओके, सो देर आर मैनी कंट्रीज विद विच इंडिया शेयर्स द लैंड बाउंड्रीज. फर्स्ट इज अफगानिस्तान. हालांकि अफगानिस्तान के साथ बहुत ही छोटी लैंड बाउंड्री है, but it shares land boundary with Afghanistan,
पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है। पाकिस्तान इज ऑन वेस्ट ऑफ इंडिया। नेपाल के साथ शेयर करती है, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना एंड म्यांमार के साथ। वन थिंग हियर टू नोट इज दैट बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करती है। दिस इज द कंट्री विच शेयर्स मैक्सिमम लैंड बाउंड्री विद इंडिया एंड लीस्ट बाउंड्री शेयर्ड विद अफगानिस्तान। ओके, यू कैन सी इन दिस मैप, I'll show you the map in which India shares its land boundaries to different countries. We are moving to another map. Just we are here. Here you can see that only a small portion of land boundary is shared with Afghanistan. Here this is Afghanistan. I'll mark this. Here the land boundary with Afghanistan is shared. It is just a little, but at least shares boundary with India. And here the land boundary with Pakistan. This is a long boundary. And here this is Nepal. नेपाल के साथ शेयर करता है. Here this is Bhutan. भूटान के साथ लैंड बाउंड्री है. Here this is China और we can say तिब्बत, तिब्बत के साथ है. Here this is म्यांमार, म्यांमार के साथ शेयर करती है. एंड दिस इज बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करती है. पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार, here this is Myanmar 6, बांग्लादेश 7. ओके, सो 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्रीज है इंडिया की. एंड हियर वी कैन सी दैट इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद island countries like Sri Lanka and Maldives. Here you can see this is Maldives island country and this is Sri Lanka. But इनके साथ लैंड बाउंड्रीज नहीं है. ओके, now we'll move to next question. We have done this question. Next question is, which two major rivers fall into the Arabian Sea? टू मेजर रिवर्स के नाम पूछे हैं जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती है. As we know, we have studied that Narmada and Tapi river. Narmada river and Tapi river are the two rivers who fall into the Arabian Sea. Arabian Sea is located on the west of Indian Peninsula. Indian Peninsula के west में है Arabian Sea. And I'll also show you the location of these rivers, Narmada and Tapi, and this sea, Arabian Sea. क्योंकि मैप देखने से concept clear हो जाता है. I'll show you the map. Here you can see, but we'll move to next map. In this map, here, this is Arabian Sea. This is Arabian Sea, okay? And here you can see this is Narmada river between Satpura and Vindhyachal range. This is Narmada river. And here this is Tapi river. These are two major rivers who fall into the Arabian Ocean. Arabian Sea में गिरती हैं Narmada and Tapi river. So this is the location of these two rivers, and this is Arabian Sea. We have completed this question. Now we will move to next question. Name the delta formed by the Ganga and Brahmaputra.
गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से जो डेल्टा बनता है उसका नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द लोकेशन एंड देन वील टेक दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द एरिया व्हेन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मीट एंड फॉर्म द डेल्टा. This delta is Sundarban Delta. Here you can see this is river, this is Ganga river, okay, here, and this is Brahmaputra river. Here this comes, and in Bangladesh both Ganga and Brahmaputra meet, and the delta are formed, which is called, this is the delta, this is called Sundarban Delta. So Ganga और Brahmaputra के मिलने से और जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में ये डिस्चार्ज होती है, बे ऑफ बंगाल में दीज रिवर्स फॉर्म सुंदरबन डेल्टा. यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं एंड ड्यू टू द सुंदरी ट्रीज दिस डेल्टा इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सुंदरबन डेल्टा. हियर यू कैन सी ऑल दिस एरिया, दिस इज सुंदरबन डेल्टा. This is due to the Ganga and Brahmaputra. And now we'll move to our question. Name the delta. This is Sundarban Delta. The Sundarban Delta is formed by the Ganga and Brahmaputra rivers. इन दोनों रिवर के मिलने से सुंदरबन डेल्टा बनता है और यहाँ पर सुंदरी ट्रीज, सुंदरी के ट्री पाए जाते हैं और इसी के नाम पर इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है. नाउ वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नंबर्स बताने हैं. विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल? कौन सी स्टेट्स हैं जिनके कॉमन कैपिटल है, जिनका एक ही कैपिटल है और दो स्टेट्स वो कैपिटल शेयर करती हैं. सो अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स की बात करेंगे, करंट अफेयर्स के हिसाब से देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम. बाद में भले ही चेंज हो जाए, बट एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. यू कैन सर्च ऑन गूगल, आप सर्च कर सकते हैं, because this is a current affair question and numbers of states and union territories changes time to time. Recently जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट था उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है एंड दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ओके. एंड जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी. सो एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. And second part of this question is which states have a common capital? कौन सी states हैं जिनका एक common capital है? These are Haryana and Punjab. They have same capital, that is चंडीगढ़. चंडीगढ़ capital हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है, ओके. हरियाणा एंड पंजाब. नाउ we'll move to next question. Why do a large number of people live in the northern plains? Northern plain में काफी अधिक संख्या में लोग क्यों रहते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन क्यों अधिक होती है? This is due to the fertile land of northern plains. नॉर्दर्न प्लेन किस तरीके से बनते हैं? जो रिवर्स जो माउंटेन से या हिमालय से फ्लो करके आती हैं, दे डिपॉजिट देयर सिल्ट और वट एवर दे फ्लो विद देम एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड. दीज आर वेरी फर्टाइल. ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं. सो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है, कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है और लोगों को जो उनका जीने का
एक कारोबार है वो मिल जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए, सो दे कैन सर्वाइव। और डू कंपेयर टू माउंटेन्स, माउंटेन के कंपेरिजन में प्लेन्स में लाइफ ये काफ़ी इजी होती है, माउंटेन्स पे लाइफ काफ़ी हार्श होती है। इस वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं दे आर थिकली पॉपुलेटेड, उनमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। दिस इज द रीज़न दैट नॉर्दर्न प्लेन्स हैव लार्जर नंबर ऑफ पीपल। So this is question we have completed. Now we will move to next question. Why is Lakshadweep known as Coral Island? Lakshadweep को Coral Island क्यों कहा जाता है? First of all, we will see the location of Lakshadweep. So we will move to map of India. Here you can see the location of Lakshadweep. This is लक्षद्वीप आइलैंड, दीज आर लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये इनके एक समूह है। दिस इज कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड। सो ये लक्षद्वीप आइलैंड किस तरीके से बने हैं? एक मैराइन एनिमल होता है जिसको कहा जाता है कोरल पॉलिप। सो ये कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं? ये एक स्केलेटन को सिक्रीट करते हैं। स्केलेटन इनकी बॉडी से निकलता है और वो वाटर में जमा हो जाता है, जिस वजह से ये जो कॉरल्स हैं ये बनते हैं। दीज कॉरल्स आर फॉर्म्ड एंड ये एक आइलैंड का रूप ले लेते हैं जब ये काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं। सो लक्षद्वीप आइलैंड पूरा कॉरल्स का ही बना हुआ है। सो लक्षद्वीप आइलैंड इज नोन एज कोरल आइलैंड। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, कोरल पॉलिप्स ये मैराइन एनिमल्स होते हैं और इनसे ही ये पूरा लक्षद्वीप कोरल आइलैंड ये बना हुआ है। सो वील मूव टू अवर क्वेश्चन। बिकॉज लक्षद्वीप इज फॉर्म्ड बाय द कॉरल्स एंड coral is secreted by the coral polyps। जो coral polyps होते हैं, जो मैराइन एनिमल होते हैं, ये coral, ये छोटे छोटे जीव, ये एक स्केलेटन सिक्रीट करते हैं, जिस वजह से ये coral का निर्माण होता है। और जब ये काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं देन दे फॉर्म कोरल आइलैंड। एंड लक्षद्वीप, द होल आइलैंड इज फॉर्म्ड ऑफ कोरल आइलैंड। इसमें काफ़ी छोटे छोटे ये आइलैंड हैं और उनके पूरा कलेक्शन को लक्षद्वीप आइलैंड कहा जाता है। एंड इनमें जो प्रोमिनेंट आइलैंड है दिस इज कॉल्ड मिनिकॉय आइलैंड। इसमें एक मिनिकॉय आइलैंड भी है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है। सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉरल्स, कॉरल के बने होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कोरल आइलैंड। एंड जो कॉरल होते हैं दे आर स्केलेटन है। स्केलेटन जिस तरीके से हमारे बॉडी में स्केलेटन है, हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, उसी तरीके से ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं इनका स्केलेटन होते हैं ये कॉरल्स। सो लक्षद्वीप इज नोन एज कोरल आइलैंड क्योंकि ये इन्हीं से ही बना हुआ है। वी हैव कंप्लीटेड स्मॉल क्वेश्चंस एंड ऑन द नेक्स्ट पार्ट we will do the remaining exercise of this chapter, that is pick the correct answer and fill in the blanks. 2 questions are remaining, we will do on the next period.